इट हर नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, या एनिमल्स के लिए लगता है, रेप्टाइल्स के लिए लगता है। I have come to the school. I have not come to the school. Have I come to the school? ठीक है. He has not arrived yet. Has he not arrived yet? You have cooked the food. You have not cooked the food. Have you cooked the food? Have you not cooked the food? Have have I sleeping थोड़ा आएगा. Have I slept? Verb का third form. ये वाली चाहिए. It has traveled. Has it traveled? It has not traveled. I have not done my work. She has lived here whole her life. Yes, it is present perfect tense and we are doing that only. We have been to Canada नहीं आएगा. He has arrived to Chandigarh. You have completed the work. आना चाहिए था. I have bought some flowers. I have not bought the flowers. Have I bought the flowers? They have seen the IPL match. They have not seen the IPL match. They have not called you. We have cut many plants. She has not done her work. She has not done her work, has she not? I have tried this dish many times. They have not gone to Jalandhar. You have taken the food. I have lost my purse. Nice, सही है. Have you ever gone to America? अमेरिका का ये बड़ा कर लो भाई. इतनी सुपर कंट्री है, उसके लिए भी आप लोग छोटा दे देते हो. हम तो कहते हैं हर पर्टिकुलर के लिए हमने कैपिटल में लेना है. We have seen this movie already. Have you attended the reasoning class? No, I have not. Have you attended? Have you arrived at Ludhiana? They have cute child. She has not seen the beaches yet. Have you not picked the car? It has collected the information. It has collected the information. कौन सी लिविंग थिंग है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती. थोड़ा सा यहाँ से सोच के सेंटेंसेस लिखा करो. They have qualified in the examination. They have not qualified in the examination. Have they qualified? सही है. Why voice is less? It should not be. I am just speaking it with the full my pitch. Attended. ATTENDED. I have met her. I have my pen. I have my pen. తమ ఫలితాలు ఇవిగోండి. जिया. जिया के साथ हैड आएगा ना. सिंगुलर है. जिया के साथ हैज आएगा. जिया हैज टेकन माई ईटेबल्स.
चिल्ड्रन के साथ एस नहीं आता है. चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल. They have not eaten the food. I have not. We have celebrated last night. We have not celebrated last night. Have we celebrated last night? Many pens likha hai. I have read the whole Bible. He had visited this place before. Has he visited this place before? ठीक है जी. कहते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. इसका अब मैंने कराना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है उस टाइम के लिए जिसको हमने बताया ही नहीं है पर्टिकुलरली वो कौन सा टाइम है ना. आज से पहले मैंने कभी नहीं बताया. वी हैव यूज्ड, जब वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट to say that an action happened at an unspecified time before now. मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ है बट अभी भी मैं ये नहीं बता रही हूँ कब हो चुका है. वहां पे भी मैं क्या यूज करती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ. द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द परफेक्ट टेंस. You can please now concentrate on it where we can use the present perfect tense. You cannot use the present perfect with the specific time expressions. You cannot. मतलब आप ऐसे नहीं यूज कर सकते जब आपको पता हो yesterday, 1 year ago, last week. यहाँ पे आप क्या है कभी भी present perfect tense नहीं यूज कर सकते. present perfect tense आप तभी यूज कर सकते हो when the time is not specified. ठीक है. We can use the present perfect time with unspecific expressions. यही मेन बात है. हमें यही याद रखना है जहां पे हमें टाइम प्रॉपर नहीं पता है वहां पे हमने क्या यूज करना है. ऑब्वियसली हमने क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एन अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन सच एज एवर, नेवर. आई नेवर ईटन दिस डिश अर्लियर. मैंने ये कभी डिश नहीं खाई है. I ever went, I ever haven't done this. मैंने ये काम कभी नहीं किया है. I even not once did this. I have done this many times. We have done this many times. I have never been to London. Yes. I have been to London several times. अब मैं फिर भी ये नहीं बता रही हूँ कि कितनी बार, पर मैंने ये बोल दिया है भी मैं बहुत बार गई हूँ. कब गई हूँ ये नहीं स्पेसिफाई किया, तो वहां पे मैं यूज कर सकती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो जहां पे टाइम जो है वो अनस्पेसिफाइड है वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो. Such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc. हाँ जी, वहां पे हम यूज कर सकते हैं. I have seen the Taj. I have eaten the food, not ate. Eat, ate, eaten होता है और verb की थर्ड फॉर्म होती है eaten आएगी. I have completed this work yet. I have completed this work. अगर yet लगाना है तो I have completed this work. I haven't completed, मैंने अभी तक complete नहीं किया है, otherwise yet नहीं लगता. I have already done this work.
I have never read the book. Several times meaning बहुत बार. I have seen the movie so many times. I have never wanted. I have never wanted your clothes. We have gone to Chandigarh. We have so tired. ये क्या? We have been tired. I have been. नहीं, you are making wrong sentences. आप सिचुएशन देखो. अब आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो अनस्पेसिफिक टाइम में बताने हैं, बट ये आपने ये बताना है कि काम हुआ है. I have already joined the event. ये ठीक है. कितनी पहले किया ये नहीं पता. So that is why it's an unspecific time. I have ever attended medical classes. I have never attended. I have visited this place so many times. We have been gone to Punjab. Go, went, gone. Yes. We have gone to Punjab. I have never eaten the frozen dessert before. I have beaten my son last night. Oh my God, how you can do that? Such a cruel father. Beaten. I have completed my work. I have attended medical class. I have never gone to Delhi. Ram has just came. I have bought a gift, not buy. Because verb का third form क्या होता है? Buy, bought. I have attempted some questions. I have already finished the project. I have never gone to Jalandhar. Jalandhar. He has read a lesson. I have never caught him doing work. I have never caught him. I have never seen him doing work. Caught होता है जब किसी ने फाड़ ले जाओ. I have never caught him. You can say doing. I've never caught him stealing things. He has so far done his business. I have not shopped here before. I have seen that movie 2 days ago. 2 days ago. टाइम बता दिया फिर तो लगना ही नहीं है. I have seen that movie. I have never seen that movie. I have gone to Delhi. मतलब हमें ये समझ आ. Is it clear कि present perfect tense वो होता है
जो काम एक बार या एक से ज्यादा बार हो गया होता है, उसमें प्रेजेंट में हम ये कहते हैं कि हाँ वो हो चुका है, वहां पे यूज होता है। उसका ग्रामेटिकल रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज लगता है सिंगुलर के लिए, हैव लगता है प्लूरल के लिए, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में क्या हो जाता है, हैव नॉट, हैव नॉट लग जाते हैं, अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। और अगर हम उसको देखें, उसको इंटेरोगेटिव भी लें, हैज और हैव आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। सो इन परफेक्ट टेंस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है हमेशा, और काम खत्म हो चुका होना चाहिए, वहां पे यूज होता है। फर्स्ट थिंग हमने इसके यूजेस में सीखी कि ये अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए यूज होता है, जहां पे टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कौन सा टाइम, वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको एग्जैक्टली पता है 2 साल तो हम नहीं यूज करेंगे, बट अगर आपको पता है कि मतलब कुछ साल पहले, देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ घंटे तो नहीं करेंगे, अगर 2 घंटे है तो नहीं करेंगे। Many times I have eaten fast food. I have eaten fast food many times. I have eaten well. Has she not done his work? I have already completed my assignment. ईटिंग नहीं ईटन होता है, बिल्कुल सही। I have done my graduation. He have not. He have not taken breakfast yet. You have never seen the movie. Have they playing cricket? Have they played cricket already? वो आएगा, प्लेइंग तो कॉन्टिन्यूस हो गया। I have not been so far visited any Italian restaurant. I have played the football. I have seen my favorite serial. I have never gone to Shimla. शिमला में SH बढ़ता है। ठीक है, I have tried making this dish several times. Have you not seen the Three Idiots? He has broken my book. Broken my book? बुक ब्रोक नहीं होती है। He has torn the pages of my book तो बात अलग है। I always say make a sentence but with this understanding. I have not signed a song. Wow. If I would have the skill, I would definitely had signed a song.
She has closed the shop. वुड की होगी, चुप कर जाओ हरप्रीत. Broken heart. Oh my god. You have booked the reception hall so far from my house. Have you eaten the dinner? ठीक है, सो हमें ये समझ आ गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ. स्टॉप. स्टॉप. ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने भी कोट करी हैं. लेट्स सी. आई हैव सीन द मूवी 20 times. अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, विच मूवी हैव यू सीन 20 times, व्हाट वुड बी द आंसर? Hey baby, Passion of Christ. Dhamal. Okay. I think I have met him once before. I think मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे एक बार पहले मिला हूं. बट सी कि कोई पे भी टाइम नहीं पता कि कब मिले हो, ये पता है कि आज से पहले मिले हो. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पे यूज होता है. दे हैव बीन मेनी अर्थक्वेक्स इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं. पीपल हैव ट्रेवल्ड टू मून. लोग मून पे ट्रेवल करे हैं, बट हमें नहीं पता कब करे हैं. जब हम स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते हैं तो हम लगाते हैं. पीपल हैव नॉट ट्रेवल्ड टू मार्स. वो मार्स तक नहीं गए हैं. हैव यू रेड द बुक येट. क्या तुमने अब तक बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? Nobody has ever climbed the mountain. किसी ने अभी तक माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं करी है. Has there ever been a war in the United States? क्या अभी तक कभी वॉर हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में? वॉर था तो वॉर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगना था. जब होता है बहुत बार, तब बीन जो है वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है. Yes, there have been a war in the United States. Clear? अनस्पेसिफाइड टाइम में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. इज इट क्लियर टू यू? I have been gone to. I have been क्यों आएगा? I have been to हिमाचल. I went to हिमाचल. I have never been to. फिर आएगा. इट डिपेंड्स कि अब तक जब बीन होता है वो तब यूज होता है. अब तक
The show has been going on. The show has been going on from 2 hours. I have been many times. I have been many times to जलंधर. गो नहीं आएगा. वो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हम यूज ही नहीं करेंगे. I have never been to अमृतसर. अमृतसर के स्पेलिंग सही करो. AMRITSAR. अमृतसर. I think I have read this before. What do you think? हो सकते हैं यूज. सिंस नहीं यूज हो सकता है क्योंकि सिंस परफेक्ट टाइम के लिए यूज होता है और यहाँ पे हम अनस्पेसिफाइड टाइम में यूज करते हैं. फॉर हो सकता है. अगर मुझे पता हो सिंस लास्ट 2 years दैट मीन्स कि टाइम इज क्लियर स्पेसिफाइड तो मैं नहीं यूज कर सकती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. बट अगर मैं बोलूं फॉर 2 years मुझे नहीं पता कौन से 2 years. शी हैज वर्कड इन HPL फॉर 2 years. मुझे क्या पता कौन से 2 साल उसने काम किया है. तो यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. This event has been ended. इसका मतलब क्या है कि इस इवेंट को बंद कर दिया गया है. दैट मीन्स धक्के से कर दिया गया है. आई हैव नॉट बीन वेटिंग द क्लाइमेट. ये क्या मतलब हुआ. आई हैव ज्वाइंड द सोफिया इंस्टीट्यूट. ठीक है. I have been watching the. I have not been watching the climate. ये क्या क्या कहना चाहते हो. आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो नो डाउट वो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हो considering everything but still you have to see that what should be the sentence. That sentence should have a quality in him. हाँ जी बीन वर्ब की फॉर्म ही है. She has been gone home. She has gone to her home. She has gone to the home. तब भी ठीक है. I have never been. I have been done economy assignment. I have done the economy assignment. सीधा आएगा. होम से पहले तो लगता है क्या है.
कहाँ पे होम से पहले? मून ने अर्थ को कभी नहीं देखा। मून हैज नेवर सीन द अर्थ। I have understood my concept. Okay. She has been played the tennis. She has played the tennis. Have you attended his party? I have traveled to Chhattisgarh every time. I have studied for the first time. Have you heard her before? Have you attended my class? Have you been going to America? Have you gone to America? ओके, स्पेसिफाइड टाइम अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू एक्चुअली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। चलो प्लीज स्टॉप इट, यू हैव रिटन मेनी थिंग्स। स्टॉप इट नाउ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। कहते हैं हाउ डू यू एक्चुअली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। The concept of unspecified time can be very confusing to the English learners. It is best to associate present perfect with the following. Topic 1, experience. You can use the present perfect to describe your experience. It is like saying I have the experience of. वो कहते हैं कि अनस्पेसिफाइड टाइम आपको समझना कई बार मुश्किल हो सकता है being the English learners, but you can use it with your experience. जो काम तुमने experience कर लिया हुआ है उसके साथ present perfect tense लगा दो। कैसे? You can also use this tense to say that you never had a certain experience. You can also use this tense to say that you have never had a certain experience. I have been to France. I have been to France. वो कहते हैं कि कई बार क्या है, हमें नहीं समझ आता ये टाइम स्पेसिफाइड है या नहीं है। उस टाइम के लिए आप इसको भूल जाओ और ये देखो कि जो चीज तुमने एक्सपीरियंस कर ली हुई है, वो काम हो चुका हुआ है, तो वो क्या आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दो। I have been to France. मैं गया हुआ हूँ फ्रांस। This sentence means that you have had the experience of being in France. ठीक है, maybe you mean there once or several times. मतलब I have been to France 3 times. You can add the number of times at the end of the sentence. I have never been to France. मैं कभी नहीं गया हूँ। तब भी this sentence means that you have not had the experience. मतलब experience word है, होया होगा तामी, ना होया होगा तामी, किन्नी बार होया होगा तामी, उन्हें सब दे नाल तुसी की लगा सकते हैं। You can use the present perfect tense.
I have been attending the English lectures for a week. अब मुझे नहीं पता वो कौन से वीक हैं जिसमें तुमने अटेंड किए हैं. ओके जी, आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर. मुझे लगता है मैंने ये मूवी पहले देखी है. तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यूज करना पड़ता है. आई हैव बीन एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग. आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. काम खत्म. आई हैव अटेंडेड इकोनॉमिक्स क्लास. I have been working today. I have been working for 3 hours. मुझे नहीं पता. I have reached before you. I have reached. He has never traveled by train. उसने कभी नहीं यूज करा. Is it a problem for you when I use 3 languages? I haven't been sleeping. I haven't slept. Continuous कैसे आएगा? I haven't slept for the continuous 3 days. अब मुझे नहीं पता वो कौन से 3 days हैं, तो मैं यूज कर सकती हूँ I haven't slept from the last 3 days. तब भी मैं यूज कर सकती हूँ. I have been selected as an IAS officer. I have already attended 3 classes. Now I am tired. आप तो बहुत tired रहते हो जी. I have been watered the plant. I have watered the plants. बस. चेंज. अब सुनो. अब मैंने बताया एक्सपीरियंस के साथ मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ. चेंज ओवर द टाइम के साथ भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ. वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द चेंज that has happened over a period of time. You have grown since the last time I saw you. तुम मतलब उससे बड़े हो गए हो उस जब से मैंने तुम्हें देखा है. ठीक है. The government has become more interested in arts education. गवर्नमेंट जो है वो मतलब टाइम के साथ इंटरेस्टेड हो गई है. ठीक है. मतलब आर्ट्स की स्टडीज में भी. Japanese has become one of the most popular courses at the university. Japanese has become one of the most popular courses. Japanese एक बहुत पॉपुलर कोर्स जो है you can say at the university since the Asian studies. एशियन स्टडीज से मतलब जापानीज कोर्स जो है वो बहुत डिमांड में. माई इंग्लिश हैज रियली इम्प्रूव सिंस आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया. मतलब जब से मैं ऑस्ट्रेलिया मूव करा हूँ मेरा जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो गया है. मतलब अब मैंने क्या लिखा है ओवर टाइम.
और द टाइम के साथ मेरी इस चीज में मैंने ये नोटिस किया है, उसमें भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई करती हूँ। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर विद दिस? एक मैं यूज करती हूँ एक्सपीरियंस के साथ, वो भी मैंने कर लिया। दूसरा मैं यूज करती हूँ जब मुझे एक्सपीरियंस होता है या किसी चीज में चेंज आता है विद टाइम, तब भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Our economy has gone down. Go went gone. आपके इंटरनेट का इशू है, दैट इज वाई स्लाइड शो नहीं हो रही है। मेरा कोई इशू नहीं है। प्लीज अपने इंटरनेट को थोड़ा सा देखो, हाउ यू कैन मेक इट स्टेबल सो दैट यू आर एबल टू यूज इट। ओके, अकम्पलिशमेंट के साथ भी मैं यूज करती हूँ। अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जब किसी का साथ होता है, we often use the present perfect tense to list the accomplishment of the individualities या individuals and humanity. Man has walked on the moon, मतलब जो चीजें accomplishment का मतलब होता है, जो चीजें आपने acquire कर ली है। जैसे आपने बोला I have been selected as an IAS officer. What that means? That also means that that thing is what which you have acquired, which you have accomplished, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, तो man has walked on the moon। ठीक है, our son has learned how to read। learned होता है, तो मेरे बच्चे ने रीड करना सीख लिया हुआ है। तब भी मैं क्या यूज करती हूँ? मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ। डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मेनी डेडली डिसीजेस। डॉक्टर्स ने बहुत सारी ऐसी डिसीजेस को क्योर किया है जो कि बंदे को मार दे। डेडली डिसीजेस वही होती है ना, फॉर विच द अल्टीमेट यू कैन से एंड इज डेथ। तो उन्होंने उसको भी क्योर कर लिया हुआ है, उसके लिए भी मैं क्या यूज करती हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम। साइंटिस्ट ने एटम को भी तोड़ दिया हुआ है। एटम इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, तो कहते हैं साइंटिस्ट ने उसको भी तोड़ दिया है। तो दैट इज अकम्पलिशमेंट, व्हाट दे हैव अचीव्ड। उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप बनाओ अकम्पलिशमेंट के। He has passed his MA examination. NASA have launched. I have the alternate. He has completed the work on the office। ऊपर ऑफिस के ऊपर या इन द ऑफिस। प्रेपोजिशन तो मैंने टेंसेस के बाद करानी है आपको। I have found the alternative for this problem. I have completed my। सौरभ इतना टाइम क्यों है आपको? जो प्रॉब्लम दे रहा है कितना टाइम और क्लास? व्हाट हैपेंड?
आपको प्रॉब्लम आ रही है, एग्जिट कर जाओ, डोंट अटेंड। दिस इज रॉन्ग। We have achieved our goal successfully. Scientists have not found the COVID vaccine yet. जिस दिन वो फाइंड आउट कर लेगी, हम सब घरों से बाहर आ जाएंगे। हम तो अपनी जान की बजाय बैठे हैं, जान बचाने के लिए तो हम घर बैठे हुए हैं। Punjab has won the match. Obviously, this is the thing. He has got bravery reward. He has been rewarded with the bravery reward. ज्यादा अच्छा सेंटेंस है ना ऐसे। India has won the badminton game. Judge has not guilty that culprit. India has won the hockey game. Okay, let's move to the next slide and learn something else. Okay, fine, students, wait. No more sentences now. An uncompleted James has not finished his homework yet. We often use the present perfect to say that an action which we expected has not happened. जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हुआ होता है। जेम्स मतलब कुछ चीजें ऐसी भी है ना जो नहीं हुई होती हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। जेम्स हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। सुशांत हैज नॉट मास्टर्ड जापानीज बट शी कैन कम्युनिकेट, बट वो बात कर रही है। बिल हैज नॉट स्टिल अराइव्ड, बिल अभी तक नहीं आया है। The rain has not stopped. रेन अभी खत्म बंद नहीं हुई है। My parcel has not arrived yet. Multiple actions at the different time. एक होता है टास्क कंप्लीट हुआ, कोई काम नहीं हुआ, एक्सपीरियंस के लिए, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए। नेक्स्ट है इसका यूजेज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। द आर्मी हैज अटैक्ड द सिटी 5 टाइम्स। अब मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स है ना, उसने मल्टीपल एक्शन किया बट डिफरेंट टाइम्स पे किया। जैसे यू हैव क्रैक्ड 100% रिजल्ट 4 टाइम्स। तो I have had 4 quizzes
and 5 tests so far this semester. She has talked to several specialists. Please don't do any personal message over here. It distracts me while teaching you. Whatever is the interaction of your personal, please do it at your ends. You are having WhatsApp and the numbers also of each other. Don't do that. If this you can say interaction is related to the class lecture, please do that. उसने ऐसा कर लिया हुआ है कितनी बार, कर लिया हुआ है इज हैड, सो इस कारण हैड उस सेंस में लगता है, इट्स नॉट ग्रामेटिकली. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. उसने बहुत जानों से पूछ लिया हुआ है, पर उसको नहीं पता कि क्यों मतलब वो बीमार रहती है. टाइम एक्सप्रेशन भी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट से हम कर सकते हैं. हैव यू एवर बीन टू मेक्सिको इन द लास्ट ईयर? क्या तुम लास्ट ईयर में कभी मेक्सिको गए हो? तो उस केस में भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकती हूँ. आई हैव बीन दैट, आई हैव सीन दैट मूवी 6 times इन द लास्ट मंथ. मैंने ये मूवी 6 बार देखी है लास्ट मंथ में. तो इसका मतलब भी क्या है, वहां पे भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ. दे हैव हैड 3 टेस्ट इन द लास्ट वीक. मतलब 3 टेस्ट उनके हो चुके हैं लास्ट वीक में. उसके लिए हैव हैड 3, हैड मतलब हो चुके हुए हैं. इट्स नॉट हैव हैड इज इकट्ठा, हैड इज वन ऑफ द वर्ब, क्रिया ले रहा है वो, वहां पे वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले रहा है उसको. She graduated from the university less than 3 years ago. She has worked for 3 different companies so far. उसने 3 कंपनीज के लिए अब तक काम कर लिया हुआ है. My car has broken down 3 times this week. मेरी कार इस वीक में 3 बार टूट चुकी हुई है. Oops, this is really a bad thing. I should not ever have said this. लास्ट ईयर एंड इन द लास्ट ईयर आर वेरी डिफरेंट इन मीनिंग. लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल. इन द लास्ट ईयर मीन द ईयर बिफोर नाउ, एंड इट इज कंसिडर्ड अ स्पेसिफिक टाइम व्हिच रिक्वायर्स सिंपल पास्ट. इन द लास्ट ईयर मीन्स 365 days ago until, है ना. मतलब इन लास्ट ईयर ऐसा हुआ, इन द लास्ट ईयर, इनमें बहुत फर्क है. आई वेंट टू मेक्सिको लास्ट ईयर, ठीक है. I went to Mexico in the calendar year before this one. तो मतलब 365 days पहले मैं गया था. ये वाले कैलेंडर के हिसाब से मैं 365 दिन पहले गया था. I have been to Mexico in the last year. I have been, फिर मुझे लगाना पड़ता है I have been to the Mexico. ठीक है. I went to Mexico मतलब ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस है. ठीक है. I have been to Mexico in the last year. मैं वहां गया था लास्ट ईयर में. I have been to Mexico at least once at some point between 365 days and now. Complicated, is it? Is it complicated? If it is, please read it once, all the slides, and if you are not able to understand, do let me know. In the next class we will discuss it again. Fine. Rather it is not difficult, but sometimes things get complex and you need
यू कैन से पर्सनल रीडिंग, दैट्स ऑल। अदरवाइज चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं कभी भी, पर सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर्ड होती है और वो आपको देखनी है। नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब में भी हम यूज करते हैं, जैसे आई हैव हैड अ कोल्ड फॉर 2 वीक्स। मेरे को पिछले 2 वीक से कोल्ड है। शी हैज बीन इन इंग्लैंड फॉर 6 months। वो इंग्लैंड में है 6 महीने से। अब मुझे नहीं पता वो कौन से 6 महीने हैं, ऑब्वियसली इट इज मेरा सेंस कि वो लास्ट 6 months है। मैरी हैज लव्ड चॉकलेट्स सिंस शी वॉज अ लिटिल गर्ल। उसने चॉकलेट्स मतलब तब से उसको पसंद है जब से वो छोटी सी लड़की थी। इन द लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर के अंदर मैंने ये किया। 365 डेज में कोई भी दिन हो सकता है जब आपने वो चीज को एक्सपीरियंस किया। द लास्ट ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल। कोई फर्क ज्यादा नहीं है, बट इन द लास्ट ईयर मतलब 365 डेज में कभी भी। लास्ट ईयर मैंने लिख दिया, इसका मतलब लास्ट ईयर में। there is no difference, but it depends upon the situation how we have to use these words. I have had not core 3-4 years. What that means? You have only seen that movie one time. आप लोगों ने ये मूवी एक ही बार देखी है। Have you only seen this movie one time? Many tourists have visited that castle. The castle has been visited by many tourists. वो एडवर्ब की एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब में ऐड करता है। सो अगर उसकी समझ लेनी होगी तो दिस इज द वे टू डू दैट। टुडे आई एम हैविंग होमवर्क फॉर यू पीपल ऑल्सो। At the end of this there are 3 slides on which there are blanks, and what you will do is after solving that you will post your you can say answers to me, but in the group I will post the answers. Fine. Solution for the English assignment I will put that. Okay dear students, you will definitely do it and I will post the answers, and after that you will cross check. ये देखो, ये भी होमवर्क की स्लाइड है आपकी, ये भी होमवर्क की स्लाइड है। ये भी होमवर्क की स्लाइड है। सो यू आर हैविंग 3 slides. Do it as your homework part. Will you do it? पहले रीड करो प्रेजेंट परफेक्ट। 15 से शुरू करके 18 तक है। 15, 16, 17। 15, 16 और 17 जो है वो आपकी स्लाइड होमवर्क है। आप लोगों ने वो सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद उस आंसर जब आप सॉल्व कर लोगे तो मुझे पोस्ट कर देना मैसेज। देन एट द एंड आई विल पोस्ट द आंसर्स इन द ग्रुप so that you people come to know what are the exact answers. Okay? आप बाद में नहीं देख सकते हो। Click this slide. Click. This is your homework. Done. Okay. Next 5 seconds more for the slide. Please click. जिन्होंने अभी भी नहीं किया। Now this one.
Yes, this is the second slide as a homework one. Please click it. Okay. This one. Third one. इसमें भी ब्लैंक्स ही हैं, जहां जहां पे इन्वर्टेड है ना, जहां जहां पे ब्रैकेट में दिया हुआ है वहां पे ब्लैंक है, आपको सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक बार प्रेजेंट परफेक्ट स्लाइड की जो है टेंस की स्लाइड जो है उनको देखना. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो लेट मी नो दैट, वी विल डिस्कस इट टुमारो. Thank you, Ji. Good night. Sweet dreams. Learn every day, groom every day, and achieve your targets. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you.